In the प्रभु name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम पे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। Before we offer our prayers, shall we all turn to the letter of Paul written to Philippians, chapter आ, 1. प्रार्थना में जाने से पहले हम पौल द्वारा लिखा गया फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय में आएंगे। Chapter 1, verse number 12. We'll all read it together. 1 अध्याय के 12 पद, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय के 12 पद हम सब मिल के एक साथ पढ़ेंगे। But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out, rather onto the furtherance of the gospel. Brother, may I request you to read it in Hindi as well, brother? फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय के 12 पद में पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। So this phrase, the things which happened unto me, has got many events packed in it. यहाँ पे जो ये भाग है, जान लो कि मुझ पे जो बीता है इसके बहुत सारे भाग हैं। Many events spread over a period of time, over several years. यहाँ पे ये जो मुझ पे जो बीता है इसका कहने का मतलब है बहुत ये सालों के अंतराल में बहुत सारी बातें इनके जीवन में हुआ था। But Paul is so confident that whatever happened post his knowing Christ, whatever happened, it has happened for the furtherance of the gospel. लेकिन पौल ये बखूबी जानता है कि जो कुछ भी इन दिनों में हुआ, इस दौरान हुआ, ये इससे परमेश्वर की सुसमाचार की बढ़ोतरी हुई है। When he wrote this letter, he was in Rome. जब इन्होंने ये पत्र लिखा फिलिपियों को, ये वो रोम में थे। And he was under house arrest. उनको जो बंदी गृह में, घर में, हाउस अरेस्ट में रखा गया था। He has come to Rome, uh, traveling all the way from Caesarea, almost 2,500 kilometers, long journey. So he has performed this journey. तो यहाँ रोम में आए थे सिसिलिया से, तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करके यहाँ तक वो आए थे। Even there in Caesarea, for 2 years, he was under detention. And from there, he was shifted to Rome. और वहाँ सिसिलिया में भी वो 2 साल तक बंदी बना के रखा गया था। उसके बाद उनको रोम लाया गया था। And when he performed this journey, there were many obstacles, many delays. जब ये यात्रा जो थी सिसिलिया से रोम तक, इनका काफी उसमें संकट से दुविधाएं थी। And his visit to Rome, or shall I say his relocation to Rome and being under house arrest, it was all with divine intervention. यहाँ पे उनको रोम पे इस तरह से आना और ये हाउस अरेस्ट रहना, इसमें परमेश्वर का कुछ योजना था। It was a divine mandate by Lord Jesus Christ. ये प्रभु ने ये स्वर्गीय इच्छा के तहत ये हुआ था। Shall we all turn to the Acts of the Apostles, chapter 23, verse number 11. प्रेरितों के काम 23 अध्याय के 11 पद पे हम पढ़ेंगे। ये नया नियम पे 199 पेज पे है। प्रेरितों के काम 23 अध्याय के 11 पद। उसी Thank रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी पड़ेगी होगी। So it was declared by God beforehand. During this time he was in Jerusalem, and it was declared by God that he would be witnessing for him in Rome as well. ये जब जब ये यरूशलेम पे ही थे, तब प्रभु ने पहले से उनको ये बता दिया था कि वो प्रभु के लिए रोम में भी गवाही देनी उनको पड़ेगी। From Jerusalem he was shifted to Caesarea, and he was under arrest for 2 years. यरूशलेम से उनको सिसिलिया में लाया गया था, जहाँ पे वो हाउस अरेस्ट 2 साल के लिए थे। And during this period, he appeared before Sanhedrin. इन दिनों, इन समय के दौरान वो सनहदन में के आगे वो गए थे, मिला था वो। Yeah, the councils of Pharisees and Sadducees. जो सदुसी और फरीसी के उनके जो कौंसिल सलाहकार थे। He appeared before governors Felix and Festus.
फेलिक्स और फेस्टस जो उनके गवर्नर थे, उनके आगे उनको जाना पड़ा था। We can read that in chapter 24, 25. ये बातें प्रेरितों के काम 24-25 में हम पढ़ सकते हैं। And also he appeared before King Agrippa as mentioned in chapter 26 of Book of Acts. और ये 26 पद में जैसे लिखा गया है, वो राजा अग्रिपा के आगे भी उनको खड़ा होना था। These are wonderful pieces of history, many events recorded here. We must take time out to read them. ये बड़ा अद्भुत ही इतिहास है, बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखा गया है, हमें समय निकाल के इसको पढ़ना चाहिए। As we are meditating on the letter written by Paul to Philippians chapter 1 verse number 12, in which this phrase that the things which happened unto me, some of these events you would find them mentioned in the chapters of Book of Acts from chapter number 22 to 26. जैसे हम पौल द्वारा लिखा गया फिलिपियों के पत्री 1 अध्याय के 12 पद में ये पढ़ते हैं कि जो कुछ मुझ पे बीता, ये जो बीता हुआ जो चीज है, वो जो घटनाएं हैं, ये प्रेरितों के काम में हमें पढ़ने को मिलता है। And then finally, Paul is made to travel to go to Rome, and he is again put under house arrest almost for 2 years, as mentioned in the book of Acts, chapter 28. जैसे कि प्रेरितों के काम 28 अध्याय में बताया गया, वो फिर यरूशलेम से वो सिसेरिया से रोम उनको लाया गया और वहां पे उनको 2 साल तक हाउस अरेस्ट में रखा गया था। Sometimes when we just hear this sentence, we really don't get the depth unless we look at geography or the map and then understand that how long he traveled. जब हम असाधारण से बातें को पढ़ते हैं, हम उसको गहराई में नहीं समझ पाते। जब हम उसके भूगोल को, उसको मैप को देखते, तब हमें समझ में होता है कि कितना लंबा दूरी उन्होंने तय किया था। As I mentioned, it took several months of travel, जैसे मैंने बताया, कई महीनों लगे थे इनको ये यात्रा करने में, and this involved shipwreck also. और वहां पे जहाज का वो भी डूब गया था। As per the divine mandate, he comes and he stays in Rome. जैसे प्रभु का इच्छा, जो स्वर्गीय सनातन इच्छा के अनुसार, वो आके रोम में रहने लगा। Rome under house arrest. रोम में वो हाउस अरेस्ट में थे वैसे। And being house arrest is not easy for anyone हाउस अरेस्ट होना किसी के लिए सरल बातें नहीं है, आसान नहीं because है। you're stripped of your freedom. You can't move freely. आपको स्वतंत्रता नहीं मिलता, आप आराम से बाहर ऊपर नहीं जा सकते इधर उधर। Yeah, you can't walk around freely. अब आप आराम से साधारण रूप से आप चल फिर नहीं सकते, जा नहीं सकते कहीं पे भी। And you're confined to a small space. और आपको एक छोटे से जगह पे केंद्रित होके वहीं पे रहना होता है। So he was put up under house arrest. और इसलिए उनको हाउस अरेस्ट में उनको उस दिनों रखा गया था। And during this time, he was chained to a Roman soldier. और इन दिनों में उनको एक चेन से बांध के एक सिपाही, रोमी सिपाही के साथ रखा गया था। And he was not very sure how long he is going to stay here और उनको ये भी नहीं पता था कि कब कितने लंबे उनको यहाँ पे रहना पड़ेगा, and what kind of punishment or sentence he would be given. उनका क्या किस तरह का दंड उनको दिया जाएगा, ये नहीं पता था उनको। He had an inkling that probably he might also be executed. उनको ये भी शायद लगता था कि कहीं उनको मार दिया ना जाए। And as he was waiting there under house arrest, many friends, many people who stood with him, they also abandoned him. जैसे उनको हाउस अरेस्ट में थे वहां पे, उनके बहुत सारे मित्र, उनके यारी दोस्ती ने भी उनको छोड़ दिया था। But there were many who stood by him as well. लेकिन उनमें से कुछ लोग थे, उनके पक्ष में खड़े भी होके रहे थे। And as he was under house arrest, he got an opportunity to witness to the soldier who was bonded to him. ये जैसे उन हाउस अरेस्ट में थे, तब उन्होंने उन सिपाहियों के साथ प्रभु का वचन बांटने को मौका मिला, जो उनके साथ वो रोमी सिपाही थे। So there would be change of guard. So he must have done to several guards. हो सकता है वो सिपाही अपने अपने जब समय में जब आते थे, तो बहुत सारे सिपाहियों के साथ उन्होंने प्रभु का वचन बांटा होगा। Shall we read Philippians chapter 1, verse number 13? फिलिपी के पत्री 1 अध्याय 13 पद।
यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। So, uh, Paul looked at it very differently. He was chained physically, but he considered himself chained in Christ. ये पौल को ये बड़ा दूसरी तरफ से ये देख रहे थे। यद्यपि पौल को चेन से बांधा गया था शारीरिक तौर से, लेकिन वो मानो प्रभु के लिए वो चेन में प्रभु के काम के लिए बंधे हुए हैं। And this opportunity was utilized to share the gospel, to further the gospel in the palace and also other places. और ये उन्होंने ये मौका लिया कि ये परमेश्वर के बारे में बताने के लिए और वहाँ पे सिपाहियों के लिए राजभवन में ये इस तरह से प्रभु के वचन पहुंचा। During this time, as he was under house arrest, some of them abandoned him. ये समय पे जब ये हाउस अरेस्ट में थे और वो उनके दोस्तों ने कभी लोगों ने छोड़ दिया था उनको, But some of them stood by him and they grew in confidence and they were bold to share the word of God, as is mentioned in verse number 14. जैसे कि 14 पद में यहाँ पे जो कुछ लोग उनके साथ थे, जो भाई थे, वो अधिकांश मेरे कैद होने के कारण युवाओं बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़ सुनाने और भी साहस करते रहे। So we are trying to understand and expand upon this phrase, the things which happened unto me. हम इस भाग को हम ध्यान दे रहे हैं जो यहाँ इन्होंने 12 पद में लिखा था, मुझ पे जो बीता है। Apart from being in custodial detention, he also faced several challenges. या उनके जो कानून के बंधुआई में रहने के बावजूद और भी कोई बहुत सारी समस्या इनको सामना करना पड़ा था During his time of ministry, उनके जो सेवकाई के समय पे। many beatings, riots, hunger, बहुत सारे पिटाई उनको सहना पड़ा, बहुत सारे विद्रोह करना पड़ा, बहुत सारी चीजों का सहना पड़ा। rejection, being rejected, बहुत लोगों ने उनको नकारा। which might be our experience as well, हमारा भी ये अनुभव हो सकता है। and many other great troubles. बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं इनके जीवन में हुआ। There were troubles which were like very difficult. They were out of measure. It was beyond his and their his ability and his and those who were with him. It was beyond their ability. ऐसे ऐसे समस्या थे कि उनको सह कर पाना इन लोगों के लिए मुश्किल होता था। So all these things, one, he attributes it to divine mandate. The second thing is that he believed and he has written it that all this happened for the sake of the for the sake of spread of the gospel. ये जितनी भी घटनाएं हुई ये स्वर्गीय सनातन इच्छा के अनुसार हुई, और वो खुद लिखते हैं कि ये सारी जो बातें उन पे बीती उससे सुसमाचार ही को बढ़ती Now, मिला। now this is how Paul thinks. Whatever happens to me, whatever happened to me, it is for the benefit of the believers. It is for the benefit of those people who do not know Lord, so that they may receive the good news. यहाँ पे देखते हैं कि जितना भी चीज इनके कठिनाई या समस्या इनके जीवन में हुआ, पौल का ये मानना था कि जो भी हुआ मेरे विश्वासी के लिए फायदे के लिए हुआ और सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए हुआ। Now the question is, what do you and I think? लेकिन सवाल ये है कि लेकिन आप और हम ऐसे समस्या में हम क्या सोचते हैं? What would How would we look at it, that whatever happens to us, because each one of us, some or other thing happens to us. हमारे जीवन में भी कई सारी घटनाएं समस्याएं होती है, लेकिन हम उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? God permits many of them in our lives. बहुत सारी चीजें प्रभु हमारे जीवन में होने देता है। How do we look at it? हम उसको कैसे देखते हैं? Paul expressly mentions that whatever happened to him, the things that happened to him, he he connects that with the purpose of furtherance of the gospel. पौल यहाँ पे लिखता है कि जो भी चीज उनके जीवन में बीता वो सुसमाचार के बढ़ोतरी के लिए हुआ। How about us? लेकिन हमारा क्या कहना है? And another express reason of Paul, as we read in verse number Philippians chapter 1, verse number 20, एक और 21 बात है, and 22. फिलिपी 1 अध्याय के 22 पद में हम एक और चीज पौल के बारे में देखते हैं। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है
तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। Yeah, brother, 21 and 22 also. 21 पद में पढ़ रहा हूँ, फिलिपी 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। 22 पद, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। So the events of his life, or he lived actually to see Christ magnified and he being fruitful. उनके जीवन में जो घटनाएं जो हुई वो परमेश्वर के लिए जिया ताकि उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। All those difficult experiences which he had to face, he didn't look at them as punishment, but he looked them as purpose of God. जितने भी दुखद घटनाएं समस्याएं उनको झेलना पड़ा, उन्होंने परमेश्वर के लिए वो श्राप नहीं देख के उसको परमेश्वर का उद्देश्य जान लिया और उनको ठान लिया। It will be nice for each one of us to be copying this and try to live like Paul did. And he couldn't live like this without his basis being a life of prayer. अ, हमारे लिए भी जैसे पौल ने इस अपने घटनाओं को इस तरह से लिया, इसी तरह से हम भी इसको इसी तरह से लेने के लिए हमारी भलाई होगी। और ये तभी हो पाया जब उसके प्रार्थना का जीवन था। If we can also in our life, if we can also live like Paul and pray like Paul, most of the circumstances and the difficulties that we face would become opportunities for us to fulfill God's purpose and vision in our lives. हम भी पौल के जैसे थोड़े बहुत जीने की कोशिश करें, उनके जैसे प्रार्थना का जीवन रखने की कोशिश करें, तो बहुत सारी समस्याएं हमारे आप और परिस्थिति हमारे जीवन में जो आते हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके सुसमाचार प्रचार के लिए हमें मौका मिलता है। We have just seen a broad view. We have not gone into the micro details. But if you can take time out, if you can read, it will be nice from the chapters mentioned in Book of Acts. And also, we see that we see that Paul seeks prayer. Chapter 1 of Philippians, verse number 19. He he knows how impactful prayer, how much needed prayer is. हाँ, यहाँ पे अभी तक हमने गहराई में नहीं गए, बारी बारी हमने अभी तक देखा है। और हम ये जान पड़ते हैं कि पौल भी वो प्रार्थना के लिए विनती करता है। He says that through your prayer, it is his request that through prayers of his fellow believers, Christ may be honored in his body. That is his prayer request. वो फिलिपी 1 अध्याय के 19 पद में ये प्रार्थना का विनती करता है लोगों से कि ताकि उनके प्रार्थना द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के दान द्वारा इसका प्रतिफल मेरे उदार होगा। So he knows the power of prayer. इसलिए उसको प्रार्थना का महत्व पता है। That is why he places such a request. इसलिए वो ऐसे निवेदन आगे रखता है। All the events that happened in his life, he could be victorious because the basis for all those things was prayer and divine mandate. जितने भी जीवन में उसकी घटनाएं समस्याएं हुए, उसमें वो जयवंत इसलिए बन पाया क्योंकि उसका ये स्वर्गीय सनातन इच्छा था और उनका प्रार्थना का जीवन था। So we must try to imitate Paul's life, and even in our own life also, we may depend on God through prayers, through our own prayers, and also seeking help of our fellow believers. इसलिए हम भी पौल के तरह हम उसके जीवन को हम अपने जीने की तरह कोशिश करें, जहाँ पे हम अपने प्रार्थना और लोगों की प्रार्थना की सहायता मांगे। Then all those hurdles, all those difficult circumstances actually would become occasions of opportunities for us. ऐसे करने से जितनी भी समस्याएं, घटनाएं, परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, वो हमारे लिए परमेश्वर का सुसमाचार करने का एक मौका बन जाता है। And we also can, through our lives, magnify Lord Jesus, and we can also be fruitful. और हम भी अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे और हम भी फलवंत बन सकते हैं।
May God help each one of us. हम प्रभु हम हर एक को सहायता करें। Thank you, brother.